Just I taught yesterday about tense and their structure and their types and their uses. Right now I am going to tell you, okay, how to convert the sentence of present and definite, okay, into English. So first of all, we will talk about affirmative structure, okay, affirmative structure. Okay, affirmative structure. So in affirmative structure, first of all, write down what? Subject, then main verb, first form, and after that we have to write down S or ES plus object and plus other word. Okay, S or ES. I told you yesterday, I told you by yesterday that where we have to use S and ES. Okay, so where we have to use S and ES, third person singular subject. Third person singular subject. And what are the singular subject of the third person? He, she, it. Okay, noun or your brother we can say. Okay, like Sita पत्र लिखती है. Okay, सीता पत्र लिखती है. This is affirmative sentence. So first of all write down subject, then सीता, okay, and main verb. Main verb what? लिखना. Write. Okay, right. So here E is present already. That's why only will write down here as writes a letter. Writes a letter. Okay. And for the negative sentence, okay, negative structure, first of all write down subject, then do, does plus main verb, first form plus object plus other word. Okay, oh sorry, not and plus main verb, first form. Okay, like सीता पत्र नहीं लिखती है. Okay, so सीता and does not write a letter. Okay, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा कि डू डज का प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है. ओके, ये याद कर सकते हो ऐसे. आई डू, दे डू, वी डू, यू डू, ही सी इट डज. सिंपल सा ऐसे भी याद कर सकते हो. ठीक है, आई डू, दे डू, वी डू, यू डू, ही सी इट डज. इट मीन्स दैट आई के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, एंड ही सी इट के साथ डज. ऐसे कि याद भी कर सकते हो. ठीक ना, आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ही सी इट डज. तो यहां ये बता रहा है कि ही सी इट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा. और इन सब के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा. कोई दिक्कत? ओके, तो ये हमारा क्या था? नेगेटिव सेंटेंस था. अगर यहां पे नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं. ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं. ओके, ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है, लिखो क्या हो जाएगा? आई के साथ डू के बाद नॉट, और टीच किसको नहीं पढ़ाता हूं? तुमको नहीं पढ़ाता हूं, यू. ठीक है ना. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना. ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड. और ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो देखो इस स्ट्रक्चर भी हम लोग मैच कर सकते हैं. सब्जेक्ट डू डज लगा दिया आई के साथ, तो डू लग गया. नेगेटिव वर्ड नॉट, और यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हमारा है, तो ऑब्जेक्ट है. अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखे. ओके, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. एवरी डे यू विल प्रैक्टिस,
every day you will learn some more new things. Every day you will spend time on a study. Every day you will acquire something. Without spending time on books, without spending time on a study, you can't receive or you can't get anything else from your books. Try to understand, my book is very important, and without my book I can't improve my English. Without having good knowledge, I can't make communication with anyone in English. So first of all, what I have to do, it is important. What I have to do, it is important. In the class I will speak in English, right or wrong. According to my teacher instructions, I will continue talk what in English. Okay, I will not talk with even my friend in Hindi, because I am giving money. I am giving my fees for learning English. So why will I talk with my friend in Hindi? I will not talk with my friend in Hindi. I will talk with my friend in English. Even I will speak wrong or right, but I will talk in English. This is the matter, and this is important thing for you. Okay, so this one is negative. Clear? Okay, suppose that वह अंग्रेजी नहीं बोलता है. ओके, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है. तो पहले ये क्या हो जाएगा, ही. अब यहाँ ही मैंने बताया था, ही किस क्या लगा, डज के बाद क्या हो जाएगा, नॉट. और नॉट के बाद क्या होगा, मेन वर्ब. और मेन वर्ब हमारा है बोलना, स्पीक. और क्या नहीं बोलता है, तो इंग्लिश नहीं बोलता है. सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया. ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट. वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड. वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश. ही डज नॉट लर्न इंग्लिश. क्लियर? अब यहां पे बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मैंने एक चीज बताया था, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. तो पहला हमारा क्या होता है, एस नो टाइप. एस नो टाइप ये हर चीज में आएगा. चाहे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, ये हर चीज में आएगा. दूसरा हमारा क्या होता है, डब्ल्यू-एस टाइप. क्या होता है, डब्ल्यू-एस टाइप. ठीक है ना. डब्ल्यू-एस टाइप फैमिली वर्ड्स भी हो सकता है, या डब्ल्यू-एस टाइप क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ड्स बोल सकते हैं. डब्ल्यू-एस टाइप वर्ड्स में क्या आता है, हाउ, व्हेन, व्हाई और वेयर. ठीक है ना. व्हाट, इटीसी कर लेते हैं. ये सब के सब क्या है, डब्ल्यू-एस फैमिली वर्ड्स है. ये सेंटेंस जो आता है, जो वर्ड है, ये क्या करता है, हिंदी सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछता है. और एस नो आंसर टाइप में क्या होता है, एस नो आंसर टाइप में जो सेंटेंस होता है वो क्या से शुरू होता है. किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है. ठीक है ना. जैसे अगर हम यहाँ पे एक बात कर लिया जाए कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं. अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, है ना. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है हिंदी में भी एंड इंग्लिश में. ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें क्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सब्जेक्ट से. तो सब्जेक्ट आप है, आपका लिए क्या होता है, यू. और यू के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है. तो हम पहले डू को लेके आएंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, डू के बाद होगा यू एंड स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. और यहाँ भी होगा क्वेश्चन मार्क. इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिला वो क्या मिला. तो सबसे पहले हम लोग डू या डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट राइट किया. अगर निगेटिव वर्ड आ गया तो निगेटिव वर्ड लगा लो, प्लस क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्या हो गया, अदर वर्ड. क्लियर हो गया ना. अगर सेंटेंस रहे कि क्या राम अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी सीखता है. ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है, हमें इसको नहीं देखना, हमें देखना है राम को. तो क्या हो गया, ही सी इट. तो ये ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, कहीं ना कहीं नाउन की जगह पे आता है. तो चाहे नाउन कह लो चाहे प्रोनाउन कह लो. तो क्या हो जाएगा, डज राम क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश. डज राम लर्न इंग्लिश. ये क्वेश्चन मार्क. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी एस और यस लगता है, इसमें एस और यस नहीं लगता है. एस और यस कब लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में. केवल किस में लगता है, तो केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एस और यस राइट करते हैं.
तो मैंने तरीका भी बता दिया। सब्जेक्ट को पहले हमने देखना है कि वर्ड सब्जेक्ट पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन आ गया, क्या आ गया, थर्ड पर्सन आ गया। तो सिंपल सी बात है, मेन वर्ब में एस लगाएंगे या तो एस लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वर्ड को, मैंने वर्ड का ऑब्जर्वेशन नहीं बताया था कि हम लोग कैसे वर्ड को क्या करेंगे, पिक करेंगे और पता करेंगे। यहाँ तक क्लियर। WH टाइप फैमिली वर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी की इंग्लिश लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं, प्लस क्या करते हैं, सब्जेक्ट राइट करते हैं। नॉट रहेगा तो नॉट भी लगा लेंगे, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये बीच में आके प्रश्न पूछेंगे, जैसे आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं, आप क्यों अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमें इसको लेके आना है, ठीक है ना। ये हमारा टाइप 2 है, इसको बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो पहले इसको लेके आएंगे तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। अब ये हमारा आप है तो आप के साथ क्या लग रहा था, डू लग रहा था, तो हो जाएगा वाई डू यू। देखो क्वेश्चन वर्ड डू डज में से डू लग गया, सब्जेक्ट राइट करना, सब्जेक्ट क्या है, यू। वाई डू यू क्या है, सीखना का होता है लर्न, लर्न, और क्या सीखते हो, तो इंग्लिश सीखते हो। इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात है, एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वे लोग मुझे कैसे पढ़ाते हैं, वे लोग मुझे कैसे पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ डू दे टीच। किसको पढ़ाते हैं, तो मुझको, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ये क्वेश्चन में। हाउ डू दे टीच मी, वे लोग मुझे कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव था, निगेटिव था और इंट्रोगेटिव का दोनों टाइप्स था। क्या था, इंट्रोगेटिव का दोनों टाइप्स था, ठीक है ना, है ना। मैं बार बार कहता हूं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर कम ज्ञान होगा तो हम लोग की इंग्लिश भी क्या होगी, हम लोग की इंग्लिश भी बहुत खतरनाक होगी, ठीक है ना। किसी के सामने बोल दोगे और जब किसी के सामने बोलोगे तो क्या होगा, दो ही काम होगा, ठीक है। या तो क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा लिखा होगा तो डेफिनेटली तुम्हारी इंग्लिश सुन करके वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। वो भी ये भी सोचेगा कि इतना खतरनाक इंग्लिश से सीखा कहाँ से बंदा, इतना खतरनाक इंग्लिश कहाँ से सीखा है। तो हमें वैसे इंग्लिश नहीं सीखना है, हमें सीखना है ऐसे कि हमारी इंग्लिश क्या निकले, फ्लो में निकले और फ्लुएंटली निकले। जब भी हम लोग किसी से बात करें तो थोड़ा सा हम लोग क्या बात करें तो उसको ये लगे कि हाँ ये क्या है, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। ये नहीं कि आई गो बोल दिया आई नो गो, अब क्या है आई नो गो, और वो इंग्लिश नहीं सीखा होगा तो सीधे क्या बोलेगा आई 10 गो, यही तो होगा ना। और तुम बोलोगे आई नो गो, ए डू यू वांट टू कम, नो आई नो गो, तो बोलेगा, वो लग रहा है कि आई नो बोल रहा है, तो क्या करेगा, वो भी बोलेगा आई 10 गो, है ना। तो ऐसा नहीं है, वी हैव टू थिंक दैट बाय विच वे वी हैव टू कन्वर्ट आवरसेल्फ इनटू अ फ्लुएंट एंड फाइन स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ओके, हमारी इंग्लिश अंग्रेजों की तरह होनी चाहिए। अगर वो भी हमसे मिल जाए, बोलते हैं ना हेलो गाइस हाउ आर यू, हाँ वेयर आर यू गोइंग, सिंपल से तुम भी रिप्लाई करो हाय आई एम गोइंग एट माई फ्रेंड्स होम, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, और वो पूछता है वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, तो बोल सकते हो नो एक्चुअली आई एम इन हरी एंड गोइंग इज वेरी एसेंशियल, माई गोइंग इज वेरी एसेंशियल, मेरा जाना क्या है, बहुत जरूरी है। ओके, सो सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो उसको भी लेके मतलब क्या है, इंडिया में लोग बोलते हैं कि हिंदी बोला जाता है, लेकिन दिस पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश सो नाइस, ये क्या कर रहा है, बहुत बेहतर इंग्लिश बोल रहा है। ओके, सो टोटली डिपेंड ऑन you by which way you will convert yourself into a fluent and fine speaker of English is totally depend on you, it's up to you. Okay, so is there any problem in these all things? Affirmative sentence में और negative sentence में कोई दिक्कत है, हाँ? Okay, make